Hello everyone, welcome to Englidium and thanks for joining me. Today we will read the poem Abhisara the Trist by Rabindranath Tagore. So before we start the poem, let's read a few lines about the poet. Rabindranath Tagore, who was born in the year 1861 in Kolkata, he wrote poems, proses, short stories, dramas, plays, one-act plays, travelogues and songs. He received the Nobel Award in the year 1913 for composing his great book Gitanjali. He died in the year 1941. ये जो नाम है ना इस पोएम का, अभिशरा द ट्रिस्ट. अभिशरा का मतलब है सीक्रेट मीटिंग and tryst means the same. We call it a rendezvous. It means a secret meeting specially met by lovers. So let's start the poem. Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. Upagupta जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, वो मथुरा के पास एक सिटी वॉल जो है, मथुरा के जो शहर है, यूपी में है मथुरा शहर, हम सबको पता है. मथुरा के जो सिटी वॉल है वहां वो सोए हुए थे. Lamps were all out, doors were all shut, and stars were all hidden by the murky sky of August. Lamps were all out. जो lamps थे वो बुझ चुके थे. Doors were all shut, दरवाजे बंद थे. And stars were all hidden by the murky sky of August. Murky मतलब dark. August का महीना है. It's a season of rain, season of monsoon. So that's why the stars were not visible. They were not seen because of the dark clouds in the sky. Whose feet were those tinkly with anklets touching his breast of a sudden. वो घुंघरू बंधा हुआ जो पैर है वो उपगुप्ता के छाती से टकराया. He woke up startled. उपगुप्ता वो तो थोड़ा घबरा गए, वो चौंक गए. And the light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes. फिर हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक जो औरत वहां से जा रही थी, उसके हाथ में एक लैंप था. And the light from the lamp, it fell on the forgiving eyes of Upagupta, the monk. Eyes, ये जो लाइन है ना, forgiving eyes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि forgiving eyes क्यों है? क्योंकि देखो उपगुप्ता सोए हुए थे, शायद वो गहरी नींद में थे, लेकिन जब वो उस औरत की जो पैर है वो उनके छाती से टकराया, Upagupta, he did not get angry with the lady. As he was a monk, he was so simple and so patient कि उसको गुस्सा नहीं आया. जब वो देखा उस औरत के ओर, उनके आंखों में गुस्सा नहीं था. ठीक है, और हमको पता है कि आंखें सब कुछ कह देती है, सब कुछ. He woke up startled and the light from the woman's lamp fell on his forgiving eyes. It was Basavadatta, the dancing girl starred with jewels. और ये औरत जो है वो कौन थी? Her name is Basavadatta. And she was just covered with jewels. Her whole body was laden with jewels. And she was a dancing girl. Dancing girl मतलब नचानिया और नाचने वाली. लेकिन हम ये इस वर्ड को यूज नहीं करेंगे. We will call her dancing girl only. Clouded with a pale blue mantle, drunk with the wine of her youth. वो क्या पहनी हुई थी? She was wearing a mantle. Mantle is a kind of outer garment, loose outer garment, जो Basavadatta was wearing, and drunk with the wine of her youth. ये बहुत important एक लाइन है. वो इतनी खूबसूरत थी कि she was so proud of her beauty. अपने जो खूबसूरती जो है उसके नशे में वो चूर थी. Okay, she was so proud that she was beautiful and she valued all she was a materialistic lady. She loved jewels, she loved beauty, the outer beauty of a person, and she was proud of her own beauty. She lowered her lamp and saw the young face, austerely beautiful. तो बासवदत्ता जो है वहां पे वो तो उसके हाथ में जो lamp, she had a lamp in her hand. She lowered it down and she saw the young face of the monk. Okay, and austerely beautiful. Austere मतलब है simple. It's simple but very attractive. And हमको पता है कि जो monk लोग जो है ना वो लोग बहुत attractive होते हैं. पता नहीं डाइट में क्या रखते हैं वो लोग.
शायद वो हम जब जाते हैं ना कई कई जगह पे, हम साधु लोगों को, मॉन्क लोगों को देखते कि हम देखते हैं भाई क्या इतने क्या खाते हैं ये लोग, इतना ग्लो क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग हम लोगों के जैसा इतना इनडिसिप्लिन नहीं है। वो लोग पिज्जा, बर्गर, केएफसी ये सब नहीं खाते। ओके, दे जस्ट लिव ऑन सिंपल फूड्स एंड दैट्स व्हाई दे ग्लो ऑल द टाइम। And as they are very happy from inside, the happiness, it is always shown on their face. Okay. Forgive me, young ascetic, said the woman. Graciously come to my house. The dusty earth is not a fit bed for you. तो जो औरत वहां पे थी, तो उन्होंने she just told that young monk कि आप यहाँ पे क्यों लेटे हुए हो? ये जगह जो है धूल मिट्टी वाली, वो जो जगह जो है ये आपके लिए नहीं है। आप मेरे साथ आओ, मेरे घर में आओ, वहां पे बिस्तर है, वहां पे सो जाओ। ग्रेशियसली जो वर्ड है इसका मतलब है विनय से। ओके, द यंग एसेटिक आंसर्ड, वोमन गो ऑन योर वे, व्हेन द टाइम इज राइप आई विल कम टू यू। लेकिन उपागुप्ता जो रिप्लाई दिया, इस रिप्लाई के लिए शायद वो औरत तैयार नहीं थी। उपागुप्ता he said that okay, औरत तुम जहां जा रही हो तुम जाओ वहां पे, जब टाइम आएगा हम तुमसे मिल लेंगे, अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो टाइम नहीं आया है, तुम अभी जाओ, गो ऑन योर वे। इट मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग, मे बी शी इज गोइंग टू हर हाउस और मे बी शी इज गोइंग समवेयर एल्स, तुम जहां जा रही हो तुम जाओ, जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा हम तुमसे मिलेंगे। Suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. अचानक से क्या हुआ? The black night showed its teeth in a flash of lightning. ये जो लाइन है ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं विजुअल इमेजरी। हम जैसे हम इमेज कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि देखो ये आसमान जो है, द स्काई इज कंप्लीटली डार्क एंड देयर इज लाइटनिंग। कैसा लगा कि जैसे आसमान एक मुंह है और ये जो लाइटनिंग है उसका दांत है, ठीक है? तो ये आसमान ने अपना दांत दिखाई, इसका मतलब देयर वाज लाइटनिंग इन द डार्क ब्लू स्काई एज इट वाज द मंथ ऑफ ऑगस्ट। द स्टॉर्म ग्राउल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द वुमन ट्रेम्बल्ड इन फियर। फिर क्या हुआ? द स्टॉर्म ग्राउल्ड, तूफान, भुनभुना कर तूफान, और औरत जो है वहां पे जो अभी तक खड़ी थी, बात कर रही थी उपागुप्ता से, वो डर गई, क्योंकि उनको अपना घर जो है वो जहां वो जा रही थी वहां जाना है। अभी देखो ये जो अभी जो हम पढ़ेंगे, ये इस पोएम का दूसरा जो फेज है, हाँ वो है, वो यहां से दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है कि अभी तक तो अगस्त का महीना था, इट वाज रेन एंड रेन, द क्लाउडेड स्काई, द क्लाउडी स्काई, द लाइटनिंग एंड द थंडर, एवरीथिंग वाज देयर। द roads were completely vacant, no one was there because the people, they all were in their houses. As we read that lamp were all out, doors were all shut. जो लैंप वहां पे थे वो बुझ चुके थे, दरवाजे बंद थे एंड तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। नाउ ये इस पोएम का दूसरा पड़ाव जो है, दूसरा जो यहां से पोएम थोड़ा चेंज हो रहा है। देखो कैसे चेंज हो रहा है। अभी तक तो अगस्त का महीना था, इट वॉज ऑल रेन एंड रेन, थंडर एंड लाइटनिंग। अभी ये जो है, अभी ये महीना जो है ये अप्रैल का महीना है। A year had not yet passed. एक साल भी नहीं हुआ। It was evening of a day in April in the spring. अभी बसंत का मौसम है और it was evening of a day in April. अप्रैल का महीना है और शाम हो चुकी है। The branches of the wayside trees were full of blossom. रास्ते के धार में जो पेड़ है, हर एक पेड़ में फूल ही फूल। ओके, ये फूलों का मौसम है। Gay notes of a flute came floating in the warm spring air from afar. कुछ दूर से कोई अपना जो बांसुरी जो है वो बजा रहा है। And the sound is coming, and the sound of the flute, it is enhancing, it is increasing the beauty of the nature, the beauty of the ambience. कितना रोमांटिक है ना। देखो आसमान में हाँ चांद है और क्या, और चांद, light of the moon, it is falling on the entire city. Someone is playing his flute, and it's a very romantic situation, a romantic ambience. The citizens had gone to the woods for the festival of flowers. और शहर के जो लोग हैं वो जंगल में गए हुए हैं क्योंकि ये फेस्टिवल है फ्लावर्स का। शायद वो लोग फ्लावर्स
कलेक्ट करने या वहां फ्लावर्स देखने गए हैं जंगल में, क्योंकि दे ऑल आर अबाउट टू एंजॉय, दे आर एंजॉइंग द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स. From the mid sky gives the full moon on the shadows of the silent town. पूरा चांद निकला हुआ है. ओके, एंड चांद की जो रोशनी जो है, is falling on the city and it is looking beautiful, majestic. The young ascetic was walking in the lonely street. रास्ता जो है सुनसान है, वहां से वो young ascetic जो है, वो तपस्वी जो है, वो जा रहे हैं. While overhead the lovesick quails uttered from the mango branches their sleepless plaint. और हम क्या देख रहे हैं कि वहां पे जो आम के जो पेड़ है, आम के जो बगीचा है, वहां जो quails जो bird है, they all are singing. Birds are also singing. Maybe they are also inviting, they are also asking their beloved to come and meet them. Okay, plaint का मतलब है complaint. Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. Rampart का मतलब है जो किले का जो दीवार है ना, उसको हम बोलते हैं rampart. तो यहाँ पे तो किला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो शहर का जो सिटी वॉल्स जो है, वहां से उपागुप्ता जा रहे थे. तो उन्होंने वहां से जब वो जा रहे थे तो he saw something. तो उपागुप्ता passed through the city gates and stood at the base of the rampart. वहां पे वो खड़े हो गए rampart के पास, वो सिटी वॉल्स के पास. What woman lay at his feet in the shadow of the mango grove? और उन्होंने कुछ देखा, उपागुप्ता ने कुछ देखा. क्या देखा? He saw a woman and she was laying on the road, on the dusty road under the mango grove. एक औरत वहां पे वो धूल मिट्टी भरी रास्ता जो है वहां पे वो सोई हुई है. Struck with the black pestilence, her body spotted with sores of smallpox. और वो smallpox से affected है. She was suffering from smallpox, and we all know that smallpox is a very contagious disease. ये बहुत जल्दी फैलता है. तो and she was suffering from smallpox and her whole body, it was afflicted with smallpox. She had black जो दाने जो है ना, दाना दाना जैसा, वो भी है पूरा शरीर में. She had been hurriedly driven away from the town to avoid her poisonous contagion. और उसको शहर से निकाला गया, क्योंकि as we all know, शहर के जो लोग हैं उन लोगों को पता था कि भाई स्मॉल पॉक्स बहुत ही कंटेजियस है, बहुत ही इन्फेक्शियस है. अगर ये औरत यहाँ पे रहेगी तो शायद स्मॉल पॉक्स जो है वो फैल सकती है. तो इसीलिए उनको शहर से निकाला गया, वो लोग निकाल दिए. The ascetic sat by her side, took her head on his knees. तो उपागुप्ता ने क्या किया? वो वहां से चले नहीं गए. वो भी वहां से जा सकते थे, उनको भी वो भी फील कर सकते थे कि भाई ये तो शी सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, हम क्यों यहाँ पे रहेंगे, हमको भी हो सकता है. बट ही इज अ मॉन्क. ओके, ही बिलीव्स इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. वो स्पिरिचुअल है. तो वहां पे बैठ गए एंड ही टूक द हेड ऑफ द लेडी ऑन हिज नीज, ऑन हिज लैप, and moistened her lips with water and smeared her body with balm. उनको पानी पिलाया और उनके पास जो बाम जैसे कुछ ऑइंटमेंट जैसा था वो लगा दिया. कहां पे? जहां स्मॉल पॉक्स उस लड़की औरत के शरीर में जहां जहां स्मॉल पॉक्स दिखाई दे रहा था वहां पे वो बाम लगा दिया. Who are you, merciful one? asked the woman. तो औरत ने अभी she asked के आप कौन हो? इतने दयालु आदमी आप कौन हो? कि दयालु तो उपगुप्ता he is definitely he is merciful, okay, he is empathetic, but the fact is that वो औरत को क्यों ऐसा लगा? क्योंकि when she was in a city, when she was attacked by the disease, she was thrown away, she was literally thrown away by her neighbors. देखो ये जिंदगी है ना, कैसे कब ये चेंज हो जाता है, no one can say. And Vasabhadatta, this lady, she did not know that her destiny was just like this. Okay, she was a materialistic person. She believed in the material objects. She believed in beauty, money, jewels, fame, influence. But look at her right now. She is thrown away, cast away completely.
The time at last has come to visit you, and I am here, Vasavadatta, replied the young ascetic. और वो सन्यासी ने ये बोला कि देखो अभी टाइम आ गया, वक्त आ गया, मैंने बोला था ना कि अभी तुम जाओ, जब वक्त आएगा हम आएंगे, देखो आज वो वक्त आ गया, इसलिए मैं यहां पे हूं। ठीक है, देखो ये हम बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 7 महीने पहले सिचुएशन क्या था? उपागुप्ता जो है वो सोए हुए थे, बसवदत्ता चल रही थी। 7 महीने बाद देखो, बसवदत्ता वो सोई हुई है और उपागुप्ता he came and started helping that sick lady. So हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। हम बोलते हैं ना, एडवर्सिटी ट्राइज अ फ्रेंड। जब दुख का टाइम आता है, जब वक्त बुरा होता है, दैट टाइम यू विल नो दैट हु आर द रियल पीपल हु रियली लव यू। और खुशी के टाइम में तो सब रहते हैं भाई। तुम अपने पार्ट्स में 5,000, 5,000, 10,000 लेके घूमो, देखो ना सब दोस्त तुमको तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, उस टाइम में जो रहेगा तुम्हारे साथ, they are the real friends. And this is our poem, Abhisara the Trist. It teaches us a very strong lesson. Okay? Destiny can, bring you somewhere, and you have to face all these things. You have to get ready for all these adversities. Okay? I hope you understood it. If you understood, if you like the explanation, like, comment and share. Subscribe.